اس سے پہلے کہ میں کلام شیئر کروں ایک چھوٹا سا سوال پوچھنا چاہتا ہوں. سوال میں ہمیشہ ہی پوچھتا ہوں تاکہ آپ کو خدا کا کلام یاد ہو جائے, بھولے نہ. ایسا ہی ہونا چاہیے, نہیں ہونا چاہیے؟ کتنے ہیں جن کو شفا چاہیے؟ سچ سچ بتائیے. سب کو چاہیے. آپ مفت شفا لینا چاہتے ہیں یا پیسے دے کر, ٹیکے لگوا کر, یا یسوع کو چھونے سے؟ فیصلہ کر لے کیسے پانی ہے شفا. یسوع کے چھو کے پانا چاہتے ہیں, ٹیکے نہیں لگوانا چاہتے؟ ویری گڈ, آپ بڑے اچھے لوگ ہیں. تو دیکھیے آج کے زندہ کلام میں سے ہم دیکھیں گے پھر آپ کو یسوع کے پاس آنے کی ضرورت ہے, یسوع کے ساتھ اٹیچ رہنے کی ضرورت ہے. تو خدا کے زندہ کلام میں سے دیکھیں رسول کی انجیل اس کا 12 باب اور اس کی 22 اور 23. اس وقت لوگ اس کے پاس ایک اندھے گونگے کو لائے جس میں بدرو تھی. اس نے اسے اچھا کر دیا. چنانچہ وہ گونگا بولنے اور دیکھنے لگا, اور ساری بھیڑ حیران ہو کر کہنے لگی, کیا یہ ابن داؤد ہے؟ آمین. آپ نے میری بیٹی ادھر ہی کھڑے رہنا. بڑا خوبصورت ریفرنس جو آج ہم سیکھیں گے, جو بیٹی نے آپ کے سامنے تلاوت کیا. متی رسول کی انجیل اس کا 12 باب 22 اور 23 ہے. لکھا ہے اس وقت لوگ کے پاس ایک اندھے اور گونگے کو لائے جس میں کیا تھی؟ بدرو تھی. لوگ ایک اندھے اور گونگے کو یسوع کے پاس لے کر آئے ہیں جس کے اندر بدرو ہے. اس کا مطلب ہے اس شخص کو جو گونگا اور اندھا ہے, بدرو نے اس کو اندھا کیا ہوا ہے, بدرو نے اس کو گونگا کیا ہوا ہے, بدرو نے اس کی زبان کو پکڑ رکھا ہے, بند کر رکھا ہے, اس نے اس کی آنکھوں کو بند کر دیا ہے. تو میری بہن میرے بھائی, لکھا ہے جب وہ اس کو یسوع کے پاس لے کر آئے تو اس نے کیا کیا؟ اسے اچھا کر دیا. اور لکھا ہے چنانچہ وہ گونگا بولنے اور دیکھنے لگا, اور ساری بھیڑ حیران ہو کر کہنے لگی, کیا یہ ابن داؤد ہے؟ یہ یسوع مسیح ہے جو ابن داؤد, جو ابن مریم کہلاتا ہے, جو ابن خدا ہے. انہوں نے کہا یہ تو یسوع ہے جو مردوں کو زندہ کرتا, جو اندھوں کی آنکھیں کھولتا, جو گونگوں کو بولنے کی توفیق دیتا, جو لنگڑوں کو چلاتا, جو بڑے معجزات کرتا ہے. اس شخص کے اندر جو گونگا ہے, جو اندھا ہے, اس کے اندر بدرو ہے. اس کو کوئی بیماری نہیں لگی ہوئی, اس کو بدرو نے پکڑا ہوا ہے. اور بدرو نے کیا کیا ہے؟ اس کی زبان بند کر دیا, اس کی آنکھیں بند کر دی ہیں, اس کو اندھا اور گونگا کر دیا ہے. تو اس شخص کو ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے یا یسوع کے پاس آنا چاہیے تھا؟ اور یہ کس کے پاس آیا ہے اور یہ کیا پا گیا ہے؟ لیکن آج کیا ہوتا ہے دنیا میں, جس کی آنکھیں کمزور ہو گئی ہیں, جس کو موتیا ہو گیا ہے, جس کو کوئی اور مسئلہ ہو گیا, وہ کہتے ہیں ہم ڈاکٹروں کے پاس جائیں گے. میری بہن میرے بھائی, ڈاکٹروں کے پاس جانا چاہیے, میں آپ کو منع نہیں کرتا, لیکن زیادہ ضروری کیا ہے؟ یسوع کے پاس آنا. یسوع کے پاس آؤ گے تو شفا پاؤ گے. میں ایک متی 15 باب 21-28 پڑھ کے دیکھ لے. میں ایک شخص کے ساتھ شہر بھی کر رہا تھا صبح, اس کے پاپا ہاسپٹل میں. پرسوں میں نے دعا کی فون پہ, خدا کا شکر وہ پہلے سے ٹھیک ہے. میں نے ان کو کہا صبح چرچ آئے, انہوں نے کہا ہم ساری فیملی ہاسپٹل جا رہے ہیں. میں نے کہا سارے نہیں, کوئی نہ کوئی تو چرچ آئے, متی 15 باب پڑھ کے دیکھے. اس کی بیٹی وہ کنانی عورت ہے, اس کی بیٹی بیمار ہے, گھر میں پڑی ہوئی ہے, وہ یسوع کے پیچھے بیابان میں ہے اور یسوع کے پیچھے پکار رہی ہے, یسوع اے ابن داؤد مجھ پر کیا کر, رحم کر. وہ بھی کسی ڈاکٹر کے پاس بھی جا سکتی تھی, لیکن وہ ڈاکٹر کے پاس نہیں, وہ یسوع کے پاس, جو ڈاکٹروں کا ڈاکٹر, یسوع ڈاکٹر ہے, جو ہیلر ہے, جو ہیل کرتا ہے, وہ اس کے پیچھے ہے, وہ اس کے پیچھے ہے, یسوع کے پیچھے, اور کہہ رہی ہے یسوع اے ابن داؤد مجھ پر کیا کر, رحم کر. لکھا کہ یسوع اس کی آواز سن کر رک گئے. اس نے کہا میں کیا کروں تیرے لیے؟ وہ پھر کہتی ہے, یسوع نے کہا یہ مناسب نہیں کہ لڑکوں کی روٹی لے کر کیا کی جائے, کتوں کو ڈال لی جائے. وہ پھر پیچھے شور کر رہی ہے, شاگرد بھی کہہ رہے ہیں خداوند اس کو کیا کر رخصت کر, یہ ہمارے پیچھے شور کر رہی ہے. جب یسوع نے اتنی بات کہی کہ لڑکوں کی روٹی لے کر کتوں کو ڈالنا
रवा नहीं। और उस औरत ने आगे से क्या कहा, उसने कहा हाँ मालिक, कुत्ते भी क्या करते हैं, मालिक की मेज से गिरे हुए टुकड़ों से अपना पेट भरते हैं। यीशु ने कहा मैंने ऐसा ईमान इस्राएल में नहीं रखा। जा बेटी, तेरे ईमान के मुताबिक हो। उसकी बेटी घर में शिफा पा गई। आज यीशु के पीछे आने की जरूरत है। अगर बीमार हॉस्पिटल में है, बीमार घर में पड़ा हुआ है, लेकिन दूसरे जो फैमिली के मेंबर हैं उनको यीशु के पास आने की जरूरत है। उनको यीशु के पास आने की जरूरत है। अब मरकस 2 पढ़ के देखे, उस शख्स को जो मफलूज था, जो चारपाई के ऊपर था, उसकी तो अकल भी काम नहीं करती थी। वो लिखा है उसके 4 दोस्तों ने क्या किया, उसको उठाकर किसके पास लेकर आए, यीशु के पास लेकर आए। और लिखा कि भीड़ बड़ी थी, गली में रश बड़ा था, उस जगह में जहां यीशु बैठे हुए थे दाखिल होना बड़ा मुश्किल था। मफलूज बहुत सालों से बीमार था। वो उनको डर था कहीं ये मर ना जाए, अगर आज भी यीशु को ना मिल सके तो इसकी तो डेथ हो जाएगी। उन 4 दोस्तों का ये ईमान था। लिखा है वो छत के ऊपर गए, उन्होंने क्या किया, छत को खोल दिया और रस्सी के साथ उस चारपाई को यीशु के आगे क्या किया, लटका दिया। लिखा यीशु ने उनका ईमान देखा। किनका ईमान? 4 दोस्तों का। बीमार का अपना ईमान नहीं है। हमें कहता नहीं बीमार ही आए हमारे घर, बीमार घर में आके पास्टर को घर लेकर आओ, पास्टर को घर लेकर आओ। खुद चर्च नहीं आना फैमिली में से किसी ने भी, पास्टर को घर लेकर आओ। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। अब ईमान किनका है? जो उठा कर लेकर आए। उस मां का वहां पर ईमान था। उन्होंने क्या किया, यीशु के आगे लटका। लिखा है यीशु ने बीमार का ईमान नहीं देखा। किसका ईमान देखा? यीशु ने उनका ईमान देखा है। और यीशु ने उनका ईमान देखकर उससे कहा उठ, अपनी चारपाई उठा, और उसी घड़ी वो क्या हो गया। तो आज आपको यीशु के पास आने की जरूरत है या नहीं है? यीशु के पास आ जाए। एक रेफरेंस हम और इन बच्चों के साथ चंदे कहते पढ़ेंगे। आप निर्मिला कौन सा रेफरेंस निकाला बेटा? मरकस 5 बाब। चले आप इसकी पहली ऐसी पढ़ ले। मैक है, आप एक और मैक कह दे दे जरा, नीचे पड़ा हुआ है जी। 5वीं पहली आयत से पहली 5 आयतें चले पढ़ ले आप। मरकस 5 बाब पहली आयत से। और वो झील के पार करसीनियों के इलाका में पहुंचे, और जब वो कश्ती से उतरा तो फिलफौल एक आदमी जिसमें नापाक रूह थी कब्रों से निकलकर उससे मिला। वो कब्रों में रहा करता था और अब कोई उसे जंजीरों से भी ना बांध सकता था, क्योंकि वह बार बार बेड़ियों और जंजीरों से बांधा गया था। लेकिन उसने जंजीरों को तोड़ा और बेड़ियों को टुकड़े टुकड़े किया था, और कोई उसे काबू में ना ला सकता था। और वो हमेशा रात दिन कब्रों और पहाड़ों में चिल्लाता और अपने ताई पत्थरों से जख्मी करता था। आमीन। चलिए 16वीं छड़ी वाली पढ़ ले। और यीशु को दूर से देखकर दौड़ा और उसे सिजदा किया और बड़ी आवाज से चिल्लाकर कहा, ऐ यीशु, खुदा ताला के फर्जंद, मुझे तुझसे क्या काम? तुझे खुदा की कसम देता हूँ, मुझे गजब में ना डाल। क्योंकि उसने उससे कहा था, ऐ नापाक रूह इस आदमी से निकल आ। आमीन आमीन आमीन। यहां पर देखे मरकस 5 बाब पहली 7 आते आपके सामने, बल्कि 20 आयत तक हम कलाम सीखेंगे। लिखा है खुदावंद यीशु मसीह उस वक्त गरसीनियों के इलाका में गए, झील के पार ही हुए तो वहां पर एक शख्स रहता था जिसे क्या हुआ है, जिसके अंदर नापाक रूह थी। उसके अंदर भी इब्लीस है, गंदी नापाक रूह है, जिसने उसके दिमाग को क्या कर रखा है, बंद कर रखा है। वो जंगलों में रहता है, उसको कई बार जंजीरों से बांधा गया है, वो जंजीरों को तोड़ देता है, उसे कोई काबू में नहीं ला सकता। वो कब्रों में रहता, लोग डरते उस रास्ते से नहीं गुजरते। इब्लीस ने उसका दिमाग बंद कर दिया हुआ है, उसके दिमाग को पकड़ा हुआ है। वो अपने तई पत्थरों के साथ जख्मी करता है और रात दिन ऊंची ऊंची चलाता रहता है। यहां पर इब्लीस ने उसका दिमाग क्या कर रखा है, पकड़ रखा है। वो हर वक्त चलाता रहता है और वहां से डरते लोग गुजरते नहीं भी। कई दफा आपकी फैमिली के अंदर ऐसे लोग भी होते हैं जो जरा सी बात पर ऊंची ऊंची चलाना शुरू कर देते हैं, चीखना शुरू कर देते हैं। दूसरे लोग डरते खामोश हो जाते हैं, वो बंद उनके मुंह बेचारे डरते बंद हो जाते हैं। उसका भी ज़हन इब्लीस ने पकड़ रखा है। वो लिखा है वो अपने तई पत्थरों से जख्मी करता है। लेकिन जब यीशु मसीह वहां के पर गए तो लिखा है वो शख्स खुद ही दौड़ा दौड़ा क्या आया है, यीशु से मिला और यीशु के पास आया और आकर क्या कर रहा है, यीशु को क्या कर रहा है, सबसे पहले वो सिजदा कर रहा है और कह रहा है, हक ताला के बेटे, तुझे हमसे क्या काम, मैं तुझे हक ताला की कसम देता, मुझे वक्त से पहले ज़ाब में ना डाल।
वो अबलीस जो लोगों को पकड़ता है, जो लोगों के जहन को पकड़ता है, ज़बान को पकड़ता है, ओ मेरी बहन आंखों को पकड़ लेता है, जिस्म को पकड़ लेता है, जोड़ों की दर्दें लगा देता है। बहुत से मैंने मेरे से केसेस हमारे पास देखे हैं। हम पिछले दिनों कसूर में थे, उस बेटी की ज़बान उस अबलीस ने बंद की, जब दुआ की उसने बोलना शुरू कर दिया। और बड़े रेफरेंस मिलते हैं। एक बहन रायवेंट से हमारे पास आई थी, उसको जोड़ों की दर्द थी, और जैसे ही उस बदरू को मैंने डांटा वो यीशु के नाम से निकल गई और उस बहन की दर्द ठीक हो गई। आज भी मैंने देखा बहुत से लोगों को इब्लीस ने पकड़ा होता है, इसको भी इब्लीस ने पकड़ा हुआ था, लेकिन जब यीशु ने उसको डांटा तो लिखा है वो नापाक रूह से क्या हो गई, निकल गई, और वो शख्स नंगा रहा करता था। 20वीं तक पढ़ के देखे, लिखा है जब वो लोग, सारे इलाका के लोग, वहां सूअर चराने वाले लोगों ने भी देखा था। अब बुजुर्गों ने खुद कहा था, मैं क्या कर खुदावन तू आग में ना डाल, ये सामने सूअरों का क्या चल रहा है, गोल चल रहा है, जिसकी तादाद 2000 थी, उससे ज्यादा थी। बाइबल में लिखा 2000 तादाद थी सूरों की। यीशु ने कहा जाओ निकल जाओ, बदरूह सूरों के अंदर गई और सूर क्या हुए, लिखा है पहाड़ी से झील में गिरे और डूब कर मर गए। उनको इतनी शर्म आई कि बदरूह हमारे अंदर आ गई, उनको बड़ी शर्म आई सूरों को, वो डूब कर ही मर गए। तो लिखा है वो मर गए, और सूअर चराने वाले क्या हुए, वो शहर में भाग के डर के। उन्होंने क्या किया, शहर में जाकर लोगों को खबर दी कि वो शख्स जो बियाबान में रहता, जो कब्रों में रहता, जो जंगल में रहता, हम डरते वहां से गुजरते नहीं थे, हम अपने सूअर भी उधर लेकर नहीं जाते थे, वो तो ठीक हो गया है। उन्होंने कहा किसने ठीक किया है, उन्होंने कहा एक शख्स है जिसका नाम यीशु है, जिसे उसने हक ताला कहकर पुकारा था, जो उसके अंदर बदरू थी, तो उसने उसको अच्छा कर दिया है, और अब वो कपड़े पहने उसके पास वो नंगा रहा करता था। और लिखा है इब्लीस ने उसका ज़हन पकड़ा हुआ था, उसको इतनी अकल नहीं थी, इतना सेंस नहीं था कि कपड़े पहनने हैं, वो नंगा रहा करता था। लोग डरते उस रास्ते से नहीं गुजरते थे लोग उस रास्ते से। लिखा है फिर वो कपड़े पहने कहां बैठा हुआ था, यीशु के कदमों में बैठा हुआ था। लोगों ने आकर देखा, लोग डर के, लोगों ने कहा तू हमारे इलाका से क्या कर चला जा। ये कैसा पावरफुल खुदा का बेटा है, ये जिसके अंदर तो खुदा का रूह है, जिसके आगे इब्लीस भी सजदा करता है। और इब्लीस ने भी कहा ऐ हक ताला के बेटे, हमें वक्त से पहले ज़ाम में। इसका मतलब अगर आपकी जिंदगी में कोई बीमारी है, परेशानी है, कोई टेंशन है, घर में लड़ाई झगड़ा है, इब्लीस ज़हन पकड़कर लड़ाई झगड़ा कराता है, आप ऊंची ऊंची चीखते हैं, आप बोलते हैं ऊंची ऊंची, आपको किसके पास आने की जरूरत है, यीशु के पास। आपने लूका 13 बाब निकाला है, आप उसकी 10वीं आयत से, बल्कि अब 16 आयत पढ़िए ओनली का, इसको बैक दीजिएगा। लूका 13 बाब की 16वीं आयत पढ़नी है आपने खुदा के कलाम में से। लूका 13 बाब 16 आयत। बस क्या वाजिब ना था कि ये जो इब्राहिम की बेटी है, जिसको शैतान ने 18 बरस से बांध रखा था, सब्बत के दिन इस बंधन से छुड़ाई जाती। आमीन आमीन आमीन। 10वीं आयत से पढ़े लूका 13 बाब। तो लिखा है खुदा यीशु मसीह हैकल में गए। इन बेटियों के लिए पहले जोरदार तालियां बजाइएगा। आप मेरी बेटी तशरीफ रखें, खुदा आपको बरकत दे। आपने हमेशा ही कोई पास्टर, कोई खादिम आए कलाम के जल्दी उठना आप तीनों ने, बल्कि और भी बेटियां उठेगी यीशु के फजल से। लिखा है खुदा यीशु मसीह सब्बत के दिन हैकल में गए। वहां पर एक औरत थी जिसको एक बदरू ने पकड़ रखा था, और वो 18 बरस से क्या थी, कुबड़ी थी। इब्लीस ने उसको पकड़ा हुआ है और उसको क्या कर दिया है, कुबड़ा कर दिया है। आज भी हमारी फैमिलीज में, हमारी कलीसिया में, बहुत से घरों में ऐसा होता है, इब्लीस पकड़ता है, आपको कर्ज के नीचे ले आता है, आपको सूद के नीचे ले आता है, आपको नशे के अंदर ले आता है, वो आपको क्या कर देता है, कुबड़ा कर देता है, वो इंसान को कुबड़ा कर देता है। यहां पर लिखा है उस औरत को इब्लीस ने पकड़ा हुआ था, उसके अंदर बदरू थी, और उस बदरू ने उसको 18 बरस से क्या किया हुआ है, कुबड़ा किया हुआ है। लेकिन जब यीशु ने उसको अपने पास बुलाया तो लिखा है यीशु ने उसके ऊपर अपना हाथ रखा, और उसी वक्त वो बदरू से निकल गई और उसका कुबड़ा बढ़ जाता रहा, उसका कुबड़ा बढ़ उसी वक्त जाता रहा। वो सीधी हो गई, और सीधी होकर जंप भी करने लगी, उछलने लगी, यीशु की तारीफ करने लगी। वो जो वहां के हैकल के काहिन थे,
उनके फकीर फरीसी वहां पर थे, उनके अंदर जालिसपन आ गया। उन्होंने कहा सब्बत के दिन यहां आकर शिफा ना पाया करो, बाकी 6 दिन है उनमें आकर शिफा पाया करो। यीशु ने उनसे कहा तुम में से कौन है जो अपने गधे को सब्बत वाले दिन या बैल को सब्बत के दिन खोल कर पानी नहीं पिलाता? क्या पानी नहीं पिलाते उनको? उनका तो यीशु ने कहा ये तो किसकी बेटी थी? जो 16वीं आयत बेटी ने तलावत की, मैं दोबारा तलावत करने लगा आपके सामने ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए। खोलकर पानी के नहीं ले जाते, बस क्या वाजिब ना था? यीशु आपको प्यार करता है, यीशु आपको शिफा देना वाजिब समझता है, उनको शिफा देना वाजिब समझता है जो उसके वफादार बेटे और बेटियां हैं, जो इब्राहिम की बेटी है, जो इब्राहिम का बेटा है। फिर हम कहते हैं इब्राहिम, इसहाक और याकूब का खुदा, जो उस खुदा पर हम ईमान रखते हैं, इन नाम के मसीही नहीं हकीकी मसीही बन जाए। यहां पर लिखा है क्या वाजिब ना था कि ये जो इब्राहिम की, कितनी है इब्राहिम की बेटियां बताएं मुझे? सारी है ना? आपके घर में कोई बीमार नहीं रह सकता, आप बीमार नहीं रह सकते, आप व्हील चेयर के ऊपर नहीं रह सकते। खुदा आपको उठाने की कुदरत रखता है, खुदा आपको शिफा देने की कुदरत रखता है। मुझे बताइए पीछे बहन बैठी है, काशिफ की आंटी लगती है, पुप्पो है आप काशिफ की। जब ये प्रे सेंटर में पहली बहन नासरा है यहां पर, आप लेकर आए थे, गली में इनके पास बैठा नहीं जाता था। ये हम दुआ कर रहे थे शाम की इवनिंग प्रे, ये हमें बार बार इशारे कर रही है बाहर आके दुआ करे, बाहर आके दुआ करे। हम नहीं गए। हमने कहा हम पहले यीशु की क्या कर रहे हैं? प्रस्तिश कर रहे हैं। ये बड़ी इनकी तबीयत खराब थी। ऐसे ये मेरी बहन, ऐसे इनकी तरफ कैमरा जरा लेकर जाए। ऐसे ही है मेरी बहन, आपकी तबीयत बहुत खराब थी, आपसे बोला सांस भी नहीं आती थी, आपके पाँव के ऊपर शुगर का सहम था। ऐसा ही है। और जब दुआ के बाद हमने प्रस्तिश की, दुआएं की, उसके बाद हमने क्या किया? इनके लिए दुआ की और खुदा ने किसने आपको शिफा दी है? यीशु के लिए जोरदार तालियां बजाइएगा। ये है मेरा यीशु हीलर, डॉक्टरों का डॉक्टर, यीशु डॉक्टर। उसके पास आ जाए, वो आपको शिफा देगा। ये यीशु की बेटी, ये इब्राहिम की बेटी थी, खुदा ने इसको छुआ, खुदा ने इसको देखा। यहां पर भी लिखा है क्या वाजिब ना था कि ये जो इब्राहिम की क्या है? अब मेरी बेटियों, आपको जरूरत है इब्राहिम की बेटियां बन जाए, यीशु की बेटियां बन जाए। आप इब्राहिम, इसहाक और याकूब के खुदा को मानते, आप उनके बेटे बन जाए। नाम के मसीही ना हो, आप हकीकी मसीही बन जाए। फिर देखिए खुदा आपकी जिंदगी में क्या करेगा? क्या करेगा? क्या करेगा? काम करेगा, मौजे करेगा। आगे लिखा है बस क्या वाजिब ना था कि ये जो इब्राहिम की बेटी है, जिसको शैतान ने, देख ले किसने? शैतान ने। ये बाइबल जिनके पास है पढ़ी के क्या लिखा है? कितने बरस से? 18 बरस से क्या किया हुआ है? बांधा हुआ था। इब्लीस 18 बरस से लोगों को बांध के रखता है। वो बांझ पानी भी ले आता है ताकि आपकी खुशियां रुक जाएं। वो आपके कारोबार को बंद कर देता है। वो 18 बरस से, 20 साल से, 25 साल से आपको पकड़े रखता है। बाप दादा के गुनाहों की सजाएं आपके अंदर है। जो बाप दादा दिए जलाया करते थे, बुतों के पीछे जिया जाया करते थे, कुर्बानियां देते थे, वो आपका पीछा करते हैं। उनसे बचने का एक ही तरीका है, यीशु के पास आ जाए। फिर यीशु का क्या वाजिब ना था? ये जो इब्राहिम की बेटी है, जिसको शैतान ने 18 बरस से बांध रखा था, इसको आज सब्बत के दिन क्या किया जाए? रिहा किया जाए, आजाद किया जाए। यीशु मसीह इसलिए आए कि लोग जिंदगी पाए और कसरत की जिंदगी पाए। वो कसरत की जिंदगी आपको देना चाहता है। वो आपको प्यार करता है, वो आपको प्यार करता है, वो आपको प्यार करता है। आप यीशु की बेटी हो, आप यीशु के बेटे हो, आप कमजोर नहीं हो, आप आम लोग नहीं हो, हकीकी यीशु के बेटे और बेटियां बन जाए। फिर देखिए खुदा आपके घराने को खुशहाल कर देगा। खुदा आपको घूरे से उठाकर कहां ले जाएगा? तख्ते शाही पर। खुदा आपको बरकत पर बरकत देगा। खुदा आपके रोटी पानी पर बरकत देगा, आटे तेल पर बरकत देगा, रुपए पैसे पर बरकत देगा, घर पर बरकत देगा। तमाम जरूरतें आपकी पूरी होगी। लेकिन उसके लिए यीशु के साथ चलना, यीशु के बेटे और बेटियां बनना बड़ा जरूरी है। मैंने आज आपको कलाम में से बता दिया है। इब्लीस पीछा करता है लोगों को पकड़ता है। इस बेटी को उसने कितने साल से? 18 साल से। उस शख्स को उसका दिमाग पकड़ा हुआ है, वो पत्थरों के साथ अपने आप को जख्मी करता है,
उसको भी देखे उसने पकड़ा हुआ है, उसको नंगा भी कर दिया है। वो उसकी इतनी अकल नहीं है कि मैंने कपड़े पहनने हैं। इब्लीस ने उसको पकड़ा हुआ है, उसको देखे उसने उसको क्या किया, गूंगा और अंधा किया हुआ है। ओ मत्ती 12 पढ़ के देख रहे, उसको क्या किया हुआ है 22-23 गूंगा। और एक और रेफरेंस देखते हैं हम, मरकुस रसूल की इंजील उसका 9 बाब है 14 से 29 पढ़े। देखिए खुदा यीशु मसीह पहाड़ से दुआ करके उतर रहे थे। यीशु मसीह क्या करके आए हैं, दुआ। वो खुद भी दुआ किया करते थे। यीशु मसीह दुआ करके पहाड़ से उतर रहे हैं, बहुत सारी भीड़ वहां पर जमा है नीचे, और उसमें भीड़ में से एक शख्स भागा भागा यीशु मसीह के पास गया और आकर यीशु के पास कहता है, ऐ खुदावंद अगर तू कुछ कर सकता है तो कर, मेरा एक ही बेटा है, मैं उसको तेरे शागिर्दों के पास लेकर आया, वो उसे अच्छा नहीं कर सके, उसके अंदर बदरू है, गूंगी बहरी बदरू है। कौन सी बदरू है? यहां पर बदरू ने क्या किया, उसको गूंगा भी और बहरा नहीं, यहां पर बहरा है, अंधा वो था, यहां पर क्या कर दिया, उसको गूंगा और बहरा कर दिया। ना तो बोले ना सुने, ना किसी सुने तो ना कोई नहीं सुने, डड कर दिया है। डड करने वाली बात ही है। और कहते हैं ऐ भाई का दिमाग खराब हो गया, ना किसी सुनता ना सुनांदा, किसी को गाला ही काटता रहता है। ऐसा ही होता है ना। इसका भी क्या कि इसके अंदर गूंगी बहरी बदरू है, और वो क्या करती है, इसको अक्सर कहां पर डाल देती है, आग और पानी में फेंक देती है। वो इसको मिर्गी डालती है, इसको आग और पानी में डालती है ताकि ये मर जाए। इब्लीस जो है वो आपकी जान लेना चाहता है, वो लोगों को मारना चाहता है। लेकिन कलाम में लिखा हुआ है, पढ़ के देख ले, यूहन्ना रसूल की इंजील 10वीं आयत लिखा है, यीशु ने वैसा चोर इसलिए आता है कि मारे और क्या करे, चुराए, लेकिन मैं इसलिए आया कि लोग जिंदगी पाए और कसरत की जिंदगी पाए, क्योंकि अच्छा चरवाहा मैं हूं, और अच्छा चरवाहा अपनी भेड़ों के लिए क्या करता है, अपनी। इब्लीस जान लेना चाहता है, लेकिन यीशु अपने आप को कुर्बान करके मुझे और आपको बचा लेता है। उस शख्स ने कहा, मैं तेरे शागिर्दों के पास लेकर आया, मेरा एक ही बेटा है, एक ही बेटा है, इकलौता बेटा है, उसके अंदर गूंगी बहरी बदरू है, और उसने क्या किया, अक्सर उसको आग और पानी में डाला है, उसको मिर्गी डालती है कि ये मर जाए। अगर तू कुछ कर सकता है तो क्या कर, कर। यीशु ने क्या कर सकता है, जो इत्काद रखता है उसके लिए सब कुछ हो सकता है। यीशु जो इत्काद रखता है उसके लिए सब कुछ हो सकता है। उसने कहा, खुदा मेरी बेइत्कादी का क्या कर, इलाज कर। यीशु ने कहा, इसको मेरे पास लेकर आओ। जब उसको यीशु के पास लेकर आ रहे थे तो इब्लीस ने दूर से देखा और लिखा उसने क्या किया, उस लड़के को मरोड़ कर बदरू ने फेंका, और वो लड़का जमीन के ऊपर गिरा, और उसके मुंह से फोमिंग निकलनी, जाग जिसे कहते हैं, वो निकलनी शुरू हो गई, वो तड़पना शुरू हो गया। कुछ लोगों ने कहा ये शायद मर गया है, लेकिन यीशु ने क्या किया, उसका हाथ पकड़ा और उसको अच्छा करके और उसके माँ बाप के हाथ कर दिया। उसने कहा ये जिंदगी पा गया है, ये बदरूहों से आजाद हो गया है। यीशु मसीह आज भी आपकी जिंदगी में मौजूद करते हैं। जरूरत किस बात की है, यीशु के पास आ जाए। बदरूहें जो है वो बहरा भी कर देती है, और क्या कर देती है, गूंगा भी कर देती है, और अंधा भी, दिमाग भी पकड़ लेती है ताकि ना किसी की बात सुने ना सुनाए। फिर कब्रों के अंदर रहते हैं, फिर कब्रों के अंदर, जंगल में, बियाबान में, और फिर कपड़े भी नहीं पहनते, नंगे शैतान। और फिर लिखा है इब्लीस जेल पकड़ लेता है, और वहां पर लिखा है उस औरत को भी कितने बरस से इब्लीस ने पकड़ा हुआ था। उसने उसको क्या करके रखा है, तो कुपड़ा मैंने देखा है, आप गली मोहल्लों में आप भी देखें, अगर कोई बुजुर्ग वो स्टिक के साथ चले, लाठी लेकर कुपड़ा होकर, तो बच्चे उसका क्या करते हैं, मजाक उड़ाते हैं। डांटे नहीं डांटे, कभी आपकी जिंदगी में इत्तेफाक हुआ, देखा आपने कभी, बच्चे उसका मजाक उड़ाते हैं, उनके अंदर कुब्बी, कुब्बा, बड़े लोग नाम रखते हैं उल्टे उल्टे। मैं समझती हूँ उस बहन को भी जो 18 बरस से क्या थी, कुबड़ी थी, बड़ी लोगों की बातें सुननी पड़ती होगी, सुनती होगी नहीं सुनती होगी, बड़े लोग मजाक उड़ाते होंगे। तो लिखा है वो कहां आई, हैकल में। कहां पर थी, कहां पर थी वो, हैकल में थी।
यीशु के खुदा के घर में थी, खुदा का कलाम सुनने के लिए आई हुई थी, और यीशु की नजर उसके ऊपर पड़ गई। और यीशु ने क्या किया, उसको बुलाकर उसके कुबड़ेपन पर क्या रखा, क्या रखा, हाथ रखा। लिखा उसी में उसका कुबड़ापन क्या हो गया, खत्म हो गया। वो बदरू जिसने उसको कुबड़ा किया मतलब क्या हुई, उसमें से क्या हो गई, निकल गई और वो सीधी हो गई। आज भी मेरी बहन मेरे भाई, आपके बिगड़े काम, आपका बिगड़ा हुआ कारोबार, आपके बिगड़े हुए हालात, आपकी बिगड़ी हुई जिंदगी, आपकी बिगड़ी हुई राहें एक ही सीधी कर सकता है। उसका नाम क्या है, बड़ी कम आवाज है, उसका नाम क्या है, उसका नाम क्या है, हाथों को उठा करके उसका नाम क्या है। उस कुरानी औरत ने बड़े जोर से पुकारा था, जोर से पुकारिएगा मेरी बहन मेरे भाई, उसका नाम क्या है। हाथों को उठाए रखेंगे, उसका नाम क्या है। हाथों को उठाकर मेरे पीछे गया, यीशु तू अंधों की आंखें खोलता है, तू गूंगों की ज़बानें खोलता है, तू बंद कान खोलता है, तू कुबड़ेपन को ठीक करता है, तू बंद ज़हन को खोल देता है, तू बुद्रों से रहाई देता है, तू इब्लीस को शर्मिंदा करता है। मैं भी तेरी बेटी तेरा बेटा हूं, आज मेरे बिगड़े काम भी सीधे कर दे। मैं हाथ उठाकर चेहरा उठाकर तुझे पुकारता हूं। ऊंची आवाज में कहिएगा, यीशु 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 मेरी मदद कर। जिस तरह कुरानी औरत ने कहा था, आमीन आमीन। मेरे यीशु के लिए जोरदार तालियां बजाइएगा, उसके कलाम के लिए जोरदार तालियां बजाइएगा। आज आपके टेढ़े काम सीधे हो चुके हैं। आपने यीशु को पुकारा है, जो यीशु को पुकारते हैं वो शर्मिंदा नहीं होते, खुदा उनकी मदद करता है। फिर ज़बूर 121 हम गाते हैं, अखियां चौकना सा बह वाल मेरी मदद नू जिसने धरती, वो आपकी मदद के लिए आ जाता है, आपके टेढ़े कामों को सीधा करने के लिए। उस यीशु के लिए और जोरदार तालियां बजाइएगा। खुदा आपको बरकत दे इस कलाम के वसीला से। इस कलाम के लिए भी जोरदार तालियां। हमेशा कलाम को पहला दर्जा दिएगा, दीजिएगा। लिखा है ईमान सुनने से पैदा सुनना मसीह के। जब चर्च में आएंगे कलाम सुनेंगे, नया ईमान मिलेगा। आमीन।